स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गई हूँ इग्नू के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो एमएससी 106 का 006 और 101 ये तीनों का सब्जेक्ट कोड का ये क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं या एमए करने में इंटरेस्टेड है, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, आप हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम से, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको हिंदी इंग्लिश सभी मीडियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है लीनियर लर्नर इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। में एमएससी 006, 106 और 101 का सब्जेक्ट कोड का लर्नर इंडेक्स का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक क्या है। The Lerner Index, formalized in 1934 by British economics of Russian origin, our Lerner is a measure of a firm's market power. Lerner Index is a profit cost margin indicator that determines the impact of market power over the price and demands of firm product. It is expressed as Lerner Index equal to price minus marginal cost divided by price. Is essentially the index measure the percentage markup that a firm is able to charge over its marginal cost. The index ranges from a low value of to a high, or the higher the value of the Lerner index, the more the firm is able to charge over its marginal cost. Hence, the greater its monopoly power. If L equal to 0, the business has perfect competition and a low profit margin. Also, then the price elasticity of demand is high in such. When L equal to 1, the firm enjoy a monopoly is the market. Is a such scenario, the profit margins are huge and there is little price elasticity of demand in the market. मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री अर्बन लर्नर द्वारा 1934 में औपचारिक रूप से दिया गया था। लर्नर सूचकांक एक फर्म की बाजार शक्ति का माप है। लर्नर इंडेक्स एक लाभ लागत मार्जिन संकेतक है जो फर्म के उत्पादक की कीमत और मांग पर बाजार की शक्ति के प्रभाव को निर्धारित करता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, लर्नर इंडेक्स इक्वल टू मूल्य माइनस सीमांत लागत डिवाइडेड बाई मूल्य। अनिवार्य रूप से सूचकांक उस प्रतिशत मार्कअप को मापता है जो एक फर्म अपनी सीमांत लागत पर चार्ज करने में सक्षम है। सूचकांक ओ के नियम मूल्य को लेकर एक के उच्च तक होता है। लर्नर इंडेक्स का मूल्य जितना अधिक होता है उतना ही अधिक फर्म अपनी सीमांत लागत पर चार्ज करने में सक्षम होता है, इसलिए इसकी एकाधिकार शक्ति भी अधिक होती है। यदि L इक्वल टू 0 व्यापार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा और कम लागत लाभ मार्जिन है, साथ ही ऐसे बाजार में मांग की कीमत रोज अधिक होती है। जब L इक्वल टू 1 फर्म को बाजार में एकाधिकार प्राप्त होता है। ऐसे परिदृश्य में लाभ मार्जिन बहुत अधिक होता है और बाजार में मांग की कीमत रोज बहुत कम होती है। Lerner index is a price cost margin ascertained by comparing the price of the particular community with its marginal cost of production. Product demand is closely related to the product price and product supply. Thus, this parameter checks a product's price elasticity of demand. However, in the case of high market power of monopolist, control over the market price is not the driving factor behind a product demands. In such scenarios, the value of L is somewhere between 0 and 1, where L equal to 1 symbolize the pure monopoly of a firm. Similarly, in a perfectly competitive market, a commodity is price is the sky factor upon which market demand depends. Therefore, as the price of good or services rises, good demand among consumer falls. Therefore, in perfectly competitive markets, the value of the Lerner index is 0. In such scenario, product price equals the marginal cost of production. Profit are low or negligible. L cannot be negative because firm never sell a product below its marginal cost. It will be result unnecessary business losses. लर्नर इंडेक्स एक मूल्य लागत मार्जिन है जो किसी विशेष वस्तु के मूल्य के उत्पादन की सीमांत लागत के साथ तुलना करके निर्धारित किया जाता है। उत्पाद की मांग उत्पादन की कीमत और उत्पाद की आपूर्ति की निकटता से संबंधित है। इस प्रकार यह पैरामीटर उत्पाद की मांग की कीमत लोच की जांच करता है। हालांकि उच्च बाजार शक्ति या बाजार पर एकाधिकारी नियंत्रण के मामले में उत्पाद की मांग पीछे की कीमत ड्राइविंग कारक नहीं है। ऐसे परिदृश्यों में एल का मान कहीं 0 और 1 के बीच होता है, जहाँ L इक्वल टू 1 फर्म के शुद्ध एकाधिकार का प्रतीक है। इस तरह एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु की कीमत प्रमुख कारक है जिस पर बाजार की मांग निर्भर करती है। इससे जैसे ही अच्छी सेवाओं की कीमत बढ़ती है, उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं की मांग गिर जाती है। इसलिए पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजारों में लर्नर इंडेक्स का मान 0 है। ऐसे परिदृश्यों में उत्पाद की कीमत उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर होती है और मुनाफा कम या नगण्य होता है। L ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि फर्म कभी भी अपनी सीमांत लागत के कम पर उत्पाद नहीं बेचती। इसके परिणाम स्वरूप अनावश्यक व्यावसायिक हानि होगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल करें। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए शेयर जरूर करें। थैंक यू।